study chapter 6. Our chapter 6 name is Clothes We Wear. Explores. First is why do we need clothes? Second is fibers used for making clothes. Third is handmade and machine-made fabric. Fourth is the clothes we wear. And fifth is clearing and storing of clothes. So I'll be giving pictures of clothes into summer clothes and winter clothes. आपको जो पिक्चर्स रखी है नीचे आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है समर क्लॉथ्स को अलग वो अलग This is a short t-shirt, this is gloves, this is jacket and this is short. Winter clothes, यहाँ पर आपको winter clothes लिखने हैं. Business side summer clothes, यहाँ पर आपको summer clothes लिखने हैं. तो winter clothes हम लिखेंगे gloves and jacket. Summer clothes हम लिखेंगे t-shirt and shorts. People wear different clothes depending on the season. जो people हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं डिपेंड करता है सीजन्स पर. Let us learn more about clothes, why we need them and what they are made of. ये और जगह पड़ता है क्लोथ्स के बारे में कि हमें उनकी जरूरत क्यों होती है और वे किससे बने होते हैं. Long ago, when humans lived in caves, they used animal leaves and bark of trees to cover themselves. काफी टाइम पहले जो ह्यूमंस थे जो केव्स वगैरह में रहते थे तो एनिमल्स का यूज करते थे लीव्स का यूज करते थे और ट्रीज के बाक्स का यूज करते थे अपने आप को कवर करने के लिए. ग्रेजुअली दे लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग स्टिचिंग क्लोथ्स. धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया वीविंग करना और कपड़ों को सिलना. These days we wear different types of clothes. और अब इन दिनों वे नए नए तरीके के अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. We need clothes all the time. पूरे टाइम में कपड़ों की जरूरत होती है. Clothes for home, clothes for school, for playing, clothes for a party, clothes for sleeping in. घर में कपड़े पहनने के लिए पहनने खेलने के लिए पार्टी में जाने के लिए फिर रात को सोने के लिए जरूरत होती है. Clothes are as important to us as a house. जिस तरीके से हाउस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है उस तरीके से कपड़े इंपॉर्टेंट है. Why do we need clothes? हमें कपड़े की जरूरत क्यों होती है? Good clothes make us look smart. अच्छे कपड़े हमें दिखने में स्मार्ट बनाते हैं. They protect our body from dust, heat, cold, heat, insect bites. बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट से, हीट से, कोल्ड से और इंसेक्ट बाइट. If we wear the same dress for many hours, what happens? यदि हम सेम ड्रेस काफी घंटे तक पहने तो क्या होगा? It becomes dirty. वो गंदी हो जाएगी. Dust settles on it. Dust पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर सेटल. If we do not wear clothes, the dirt would stick to our body. यदि हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो जो वो डस्ट है हमारी बॉडी पे स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी. Clothes protect us from dust. जो क्लोथ्स हैं वो हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं. This picture shows clothes protect us from cold, rain and heat. इस पिक्चर में शो कर रखा है जो क्लोथ्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से, रेन से और हीट से. People who work in the sun for a long time become tanned. People जो है काम करते हैं उनके अंदर काफी लंबे तक टैंड हो जाते हैं. The covered part of our body is usually fairer than the uncovered part. जो कवर्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो फेयर रहता है, साफ रहता है अनकवर्ड पार्ट से. This shows that clothes protect us from the heat of the sun. शो करता है जो कपड़े होते हैं वो हमें सन की हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. During winter we like to wear thick and warm clothes. सर्दियों के दौरान हमें काफी मोटे कपड़े और वार्म क्लोथ्स पहनना पसंद होता है. Protect us from the cold. ये हमें सर्दी से बचाते हैं. When we go out in the rain, we wear raincoats. जब भी हम बारिश के मौसम में बाहर जाते हैं तब हम रेनकोट्स पहनते हैं. They are made of waterproof material. जो कि waterproof material से बने होते हैं. Raincoat protects us from the rain. जो रेनकोट है वो हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. If we wear long sleeve clothes at night, we can protect ourselves from mosquito bites. यदि हम रात के समय में long sleeve clothes पहने तो हम अपने आप को mosquito bites से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं. Clothes therefore protect us from insect bites too. Clothes होते हैं वो insect bites से हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. Fibers used for making clothes. Clothes can be made from natural or synthetic fiber. Clothes हैं वो natural और synthetic fibers दोनों से ही बनाए जाते हैं. This picture shows clothes and jute are natural fibers obtained from plants. इस पिक्चर में शो कर रखा है जो कॉटन और जूट है ये दोनों नेचुरल फाइबर्स है जो हमें प्लांट से मिलते हैं. This shows wool and silk are natural fibers obtained from animals.
पिक्चर में शो कर रखा है जो सिल्क और वूल है, ये दोनों ही नेचुरल फाइबर्स हैं जो वैसे मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही मिलते हैं। सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, तो सोर्सेज दे रखे हैं नेचुरल फाइबर्स की। सोर्सेज है कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, फ्लेक्स प्लांट, एनिमल्स इसमें शीप, कॉटन, कैमल एंड सिल्क वॉर्म। फाइबर दे रखे हैं, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलती है, जूट प्लांट से हमें जूट मिलती है, फ्लेक्स प्लांट से हमें लिनन मिलती है, एनिमल्स पे शीप, गॉट, कैमल से हमें वूल मिलती है, फॉर्म से हमें सिल्क मिलती है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं। स्पेशल केमिकल्स में फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर। जो स्पेशल केमिकल्स होते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने होते हैं जिनका यूज़ करते हैं फाइबर्स बनाने के लिए। क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ्स। वे क्लोथ्स जो इन फाइबर्स से बने होते हैं उनको सिंथेटिक क्लोथ्स बोलते हैं। लाइक नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयन सिंथेटिक एंड मैन-मेड फाइबर। नायलॉन, पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक है और मैन-मेड फाइबर्स भी हैं। सिंथेटिक क्लॉथ इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्लॉथ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। इस विंकल फ्री एंड डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग। विंकल फ्री होते हैं और इनमें भी नहीं होती। सिंथेटिक क्लॉथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड ड्राई क्विकली। जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो वाटर को जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करते और जल्दी ही सूख जाते हैं। दे आर नॉट एज कंफर्टेबल एज कॉटन। कॉटन में कंफर्टेबल नहीं होते। यू शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स नियर द फायर सिंस दे कैच फायर इजीली। हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स को आग के पास नहीं पहनना चाहिए क्योंकि सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं काफ़ी जल्दी आसानी से आग को पकड़ लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। नो मोर सच इज सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नाइल, rayon and polyester are not found in nature. Synthetic fibers जैसे कि नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर नेचर में पाए नहीं जाते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर कॉल्ड मैनमेड फैब्रिक्स। इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है और इनको हम मैनमेड फैब्रिक्स भी बोलते हैं। दिस फैब्रिक्स आर स्ट्रेचेबल, वाटरप्रूफ एंड wrinkle free। जो फैब्रिक्स होती हैं स्ट्रेचेबल होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं और wrinkle free भी होते हैं। दे ड्राई वेरी क्विकली। ये काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। Handmade and machine-made fabrics, hand-spun and woven clothes को hand-spun को हम कढ़ाई बोलते हैं। Spinning and weaving is done by hand. It is called hand-loom fabric. जो स्पिनिंग भी होती है यदि वो हाथों के द्वारा की जाए तो हम उसको हैंडलूम फैब्रिक बोलते हैं। Nowadays, small powerlooms are set up and traditionally the cloth woven by them is also called hand। आजकल के दिनों में जो स्मॉल पावरलूम्स होते हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं। ट्रेडिशनली जो क्लोथ होते हैं वो वूवन किए जाते हैं इनके द्वारा जिनको हम हैंडलूम बोलते हैं। लार्ज स्केल क्वांटिटी ऑफ इज मेड बाय यूजिंग बिग पावरलूम्स इन मिल्स। जो लार्ज स्केल क्वांटिटी होती है वो बनाई जाती है बिग पावरलूम्स के द्वारा इनको यूज करके फेस करने में। मशीन स्पन एंड मशीन वूवन कॉल्ड मिल क्लॉथ। मशीन स्पन और मशीन वूवन जो मिल्स में होते हैं और मिल बोलते हैं। The clothes we wear in hot weather we wear made of cotton। गर्मियों के टाइम पर हॉट वेदर में हम क्लॉथ्स पहनते हैं जो कॉटन से बने होते हैं। कॉटन क्लॉथ्स अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो अलाउ करते हैं कि हीट को दूर रखें, हीट से बचाएं। कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब स्वेट ऑल्सो। जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो स्वेट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। White कलर क्लॉथ्स सूट द हॉट वेदर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप बॉडी कूल। जो व्हाइट और ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं वो हॉट वेदर में सूट होते हैं क्योंकि ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। दिस पिक्चर शोज कॉटन क्लॉथ। इन कोल्ड वेदर वी वियर वूलन क्लोथ्स। कोल्ड वेदर में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अवर बॉडी वार्म। जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमारे वार्म रखते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पीपल ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ। ये पीपल जो अलग अलग रीजन पे रहते हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड द ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पर और उनके रीजन के ट्रेडिशन पर। ड्रेस ऑफ अ पर्सन लिविंग श्रीनगर will be different from that of person living in Chennai। वो ड्रेस पर्सन की श्रीनगर में रहते हैं वो काफ़ी अलग होती है उन पर्सन से जो चेन्नई में रहते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ। जो पीपल हैं वो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वियर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वेदर इन द रीजन वियर दे लिव। जो काइंड होते हैं क्लोथ्स के जो भी पहनते हैं वो डिपेंड करते हैं वेदर पर कि वो किस रीजन में रह रहे हैं। Some of these clothes have become national
ड्रेसेस। और कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जो नेशनल ड्रेसेस होते हैं। द नेशनल ड्रेस ऑफ एन इंडियन वुमन इज द साड़ी। नेशनल ड्रेस है इंडियन की वो है साड़ी। एंड दैट ऑफ अ जापानीज वुमन किमोनो। और जापानीज वुमन की जो नेशनल ड्रेस है वो किमोनो। These picture shows people from different places wear different types of clothes। इस पिक्चर में शो कर रखा है कि जो पीपल हैं वो अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं और अलग अलग कपड़े पहनते हैं। पीपल वेयर स्पेशल क्लॉथ्स फॉर स्पेसिफिक वर्क। जो पीपल हैं वो स्पेशल क्लॉथ्स भी पहनते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए। डॉक्टर्स एंड नर्सेज वेयर वाइट कोट। डॉक्टर और नर्सेज दोनों एक वाइट कलर के कोट पहनते हैं। पीपल वर्किंग फैक्ट्रीज वेयर ओवरऑल। ये पीपल जो फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क करते हैं वो ओवरऑल पहनते हैं। A soldier wears a uniform made from materials so that it does not tear easily। जो सोल्जर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं जो टफ मटेरियल से बने होते हैं जिस वजह से वे आसानी से टीयर नहीं हो सकते। जो भी है यूनिफॉर्म स्कूल से कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आप स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनते हैं जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकें, अलग पहचान ना सके कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं। Socks and shoes, we wear socks and shoes to protect our feet from dust, heat, cold and germs and worms। हम socks और shoes पहनते हैं अपने feet dust, heat, cold, germs, worms से बचाने के लिए। Walking barefoot can cause cuts। यदि हम नंगे पैर चलें तो इस कारण हमारे फुट में कट्स भी लग सकते हैं। Dirt, germs, worms may get into the cuts and cause an infection। Dirt, germs, worms वगैरह होते हैं वो इस कट में लग सकते हैं, जा सकते हैं जिस कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है। डू नॉट वियर वेट और डर्टी सॉक्स और टाइट शूज। आपको गीले और डर्टी सॉक्स नहीं पहनने चाहिए, टाइट शूज भी नहीं पहनने चाहिए। This picture shows socks and shoes। Now check the correct statements and put a cross against the wrong ones। आपको गलत स्टेटमेंट पे आगे टिक करना है और जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपको क्रॉस करना है। फर्स्ट इज क्लोथ्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड एंड रेन। जो क्लोथ्स है वो हमें डस्ट, हीट, कोल्ड रेन से प्रोटेक्ट करते हैं तो ट्रू हम इस पर टिक कर देंगे। सेकंड इज वी वियर थिक एंड वार्म क्लोथ्स इन समर। हम समर में थिक और वार्म क्लोथ्स पहनते हैं तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। थर्ड इज नायलॉन रेयर एंड पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर्स। नायलॉन रेयर पॉलिस्टर फाइबर्स है नो, तो क्रॉस कर देंगे। फोर्थ इज पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वियर ओवरऑल। वे पीपल जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं ओवरऑल पहनते हैं राइट, टिक कर देंगे। फिफ्थ इज वी शुड वियर वेट सॉक्स एंड टाइट शूज। हमें वेट सॉक्स और टाइट शूज पहनने चाहिए नो। Wearing and storing of clothes, we should always wear clean clothes to stay healthy। हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए अपने रखने के लिए। वॉश एंड आयरन अवर क्लॉथ्स रेगुलर। और रेगुलरली हमें अपने क्लॉथ्स को वॉश भी करना चाहिए और आयरन भी करना चाहिए। अपने क्लॉथ्स आर वॉश विद सोप एंड वाटर। और उन क्लॉथ्स को हमें सोप से धोना चाहिए। पीपल यूज वॉशिंग मशीन टू वॉश क्लॉथ्स। कुछ पीपल वॉशिंग मशीन का भी यूज करते हैं कपड़े को धोने के लिए। आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स शुड बी प्रॉपर्ली स्क्वीज्ड एंड ड्राइड एंड देन आयरन। और धोने के बाद जो क्लोथ होते हैं वो प्रॉपर्ली स्क्वीज हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, फिर सूख जाते हैं, उसके बाद हमें आयरन करना चाहिए। तुरंत क्लोथ नीड ड्राई क्लीनिंग। तुरंत क्लोथ को ड्राई क्लीनिंग की जरूरत होती है। फॉर्म क्लोथ शुड बी मेंटेड इन टाइम। जो फटे हुए कपड़े होते हैं हमें टाइम टू टाइम मेंटेड करना। यू नो आ स्टिच इन टाइम सेव नाइन्स। यदि आप स्टिचेस करें टाइम पर तो वो सेव टाइम हो सकते हैं। मीन्स क्लोथ्स मस्ट ऑलवेज बी इम्पैक्टेड बाय जो क्लोथ्स होते हैं वो डिसइंफेक्टेड हो सकते हैं एंटीसेप्टिक के साथ। स्टेन्स कैन ऑफन बी रिमूव फ्रॉम क्लोथ्स। जो स्टेन्स वगैरह होते हैं वो क्लॉथ से रिमूव हो जाते हैं। पेट्रोल एंड बेंजीन विल रिमूव ऑयल एंड ग्रीस स्टेन्स। पेट्रोल बेंजीन होते हैं वो रिमूव कर देते हैं वो ग्रीस स्टेन्स को। टैल्कम पाउडर रिमूव इंक स्टेन्स। टैल्कम पाउडर होता है वो इंक स्टेन्स को रिमूव कर देता है। कॉफी एंड टी स्टेन्स कैन बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग द नेचुरल इमीडिएटली। कॉफी और टी स्टेन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं यदि हम उस मटेरियल को इमीडिएटली वॉश कर देते हैं उसके द्वारा। इंसेक्ट्स सच एज द सिल्वर फिश एंड द मोथ अटैक क्लोथ्स। इंसेक्ट्स जैसे कि सिल्वर फिश और मोथ क्लॉथ्स पर अटैक करते हैं। एयर क्लोथ्स ऑफन टू कीप इंसेक्ट्स। जो एयर क्लोथ्स होते हैं वो इंसेक्ट को दूर रखते हैं। मोथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स ऑल्सो हेल्प टू कीप इंसेक्ट्स अवे। मोथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स जो होती हैं वो भी हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को दूर रखने में। इस बच्चे मॉथ बॉल clothes needs good care, especially silk and woolen clothes, or some insects feed on these clothes। clothes को जरूरत होती है गुड केयर की, स्पेशली सिल्क और वुलन क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स इन पर फेड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। Therefore, once the season is over, then put in the sun or dry clean। जब सीजन ओवर हो जाए, खत्म हो जाए, तब आपको
इन कपड़ों को सन में रखना चाहिए, धूप में रखना चाहिए और ड्राई क्लीन भी करना चाहिए। दे शुड कैन बी पैक करके रख देना चाहिए। मोथ बॉल्स ऑफ ड्राइड नीम लीव्स शुड बी प्लेस्ड विद वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ के साथ आपको मोथ बॉल्स ऑफ ड्राइड नीम लीव्स भी रख देने चाहिए। दिस कीप इंसेक्ट्स अवे, ये इंसेक्ट को दूर रखती है। प्रॉपर केयर ऑफ क्लॉथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर, यदि हम अच्छे से केयर करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। इन कोल्ड वेदर वी वियर वुलन क्लॉथ्स, और कोल्ड वेदर में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। माइंड स्पार्कल फर्स्ट इज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। लेकिन इफ वी मस्ट वियर क्लॉथ्स दैट आर फिट टू द सीजन, हमें क्लॉथ्स पहनना चाहिए सीजन से सोच करते हुए। थर्ड इज क्लीन क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड मेक अस हेल्दी। आप कपड़े होते हैं वो हमें देखने में स्मार्ट भी बनाते हैं और हेल्दी भी रखते हैं। नेक्स्ट इज शूज एंड सॉक्स प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड एंड इन्फेक्शन। जो शूज और सॉक्स होते हैं वो हमारे फीट को प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट से, हीट से, कोल्ड से एंड इन्फेक्शन। लास्ट पॉइंट, रेगुलर वॉशिंग एंड प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। यदि हम कपड़ों को रेगुलर वॉशिंग करें, प्रॉपर स्टोरिंग करें कपड़ों को, तो वे काफ़ी लंबे समय तक ही चलेंगे। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।